بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ناصر ہاشمی ہے۔ میں گزشتہ 3 دہائیوں سے گلف میں اوورسیز پاکستانی کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ اس ویلاگ کا مقصد ہرگز کسی کے خلاف کوئی بات کرنا یا ویزے کے لیے حصول کے لیے منع کرنا نہیں ہے، لیکن ان پاکستانیوں کے لیے یہ ایک نیو لیسن ہوگا کہ وہ سب سے پہلے ویزا لینے سے پہلے قانون کو سیکھیں۔ ہمیں کچھ چیزوں پہ غور کرنا ہوگا کہ پاکستانیوں کی اس سلسلے میں پوری دنیا میں عزت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ کیا ہر بندے کو، ہر پاکستانی کو باہر جانا ضروری ہے؟ جہاں پہ جھوٹ بکتا ہے، صرف خریدنے والے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ خریدیں گے تو جھوٹ بہت بکے گا۔ میں گزشتہ 30 سال سے ایک ٹرم سن رہا ہوں گلف کے اندر، آزاد ویزا۔ میں سب بچوں سے، جوانوں سے، اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد ویزے کی ٹرم کوئی ٹرم نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ویزا سیلر ہیں، جو ویزا بیچتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ ویزا بیچنے کے لیے لوگوں کو طرح طرح سے بیوقوف بناتے ہیں۔ میں پچھلے 1 سال سے عمان میں مقیم ہوں، میرا آنا جانا رہتا ہے۔ میں نے وہاں پہ جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا دیکھا، جو ویزے بکتے دیکھے، جو لوگوں کو دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے دیکھا، میں وہ دوسرے لوگوں کو ان سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر میرے اس ویلاگ سے ایک پاکستانی بھی یہ سمجھ گیا کہ باہر جانے میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے میری ویڈیو کا مقصد پورا ہو گیا۔ عمان کے اندر ویزے کھلے ہوئے تھے، یو اے میں ویزے بند تھے، کویت میں پہلے بند تھے، اسی طرح سعودیہ میں بھی کچھ وقت کے لیے بند تھے۔ تو لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا کہ ویزوں کی ریٹ بڑھ گئے، قیمتیں بڑھ گئی۔ میں جو گزشتہ 3 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں، ویزوں کا کاروبار بہت ہی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور لوگوں کو بڑی جلدی خریدنے والوں کو غریب بناتا ہے اور بیچنے والوں کو امیر بناتا ہے۔ میں لوگوں سے مخاطب ہوں جو پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، جو دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ کسی ملک میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اپنے روزگار کے لیے ہجرت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور سوچئے کہ آپ کس طریقے سے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کی وہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آج تک میں نے کوئی ویلاگ نہیں دیکھا جس میں لوگوں کو بتایا گیا ہو کہ وہاں پہ جانے کا اور قانون کا احترام کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جتنے ویلاگرز ہیں، جتنے یوٹیوبرز ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ویڈیو چلانے کے لیے جھوٹی خبریں اور جھوٹے خواب بیچتے ہیں۔ خواب اس لیے بیچتے ہیں کیونکہ خریدنے والے بہت ہیں۔ خواب دیکھیں ضرور، لیکن خواب خریدے نہ، جھوٹے خواب مت خریدیں۔ سب سے پہلے بات ہو رہی تھی آزاد ویزے کی۔ آزاد ویزا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ غیر قانونی ٹرم ہے۔ اس لیے جب کوئی آپ کو آزاد ویزے کا کہے تو بالکل اس کے اوپر دھیان نہ دیں۔ ویزے کا مطلب ہے اس ملک کے قانون کے مطابق اس اسپانسر کے ساتھ جا کے کام کرنا جس کو آپ کی ضرورت ہے۔ جب اس کو آپ کی ضرورت ہے تو وہ ویزے کی جو گورنمنٹ کی فیس ہے وہ اسپانسر پے کرے گا، آپ نہیں پے کریں گے۔ وہ ٹکٹ آپ کو وہ دے گا۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ جائیں گے، ایک نوکری پہ جائیں گے، ڈائریکٹلی جا کے نوکری پہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کو رہنے کی جگہ ملے گی، اور یہ آپ کے لیے ایک بہتر روزگار ہوگا، جو ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے۔ لیکن لوگ لاکھوں روپے دے کے آزاد ویزے خریدتے ہیں گلف کنٹریز کے اندر، چاہے وہ یو اے ہو، چاہے سعودیہ ہو، چاہے عمان ہو، جو کہ غلط ہے۔ دوسرا طریقہ، وزٹ ویزے پہ جا کے نوکری ڈھونڈنا، یہ ایک غلط ٹرم ہے۔ ہماری عزت کیوں نہیں ہے دوسرے ملک، گلف کے ملکوں میں یا دوسرے ملکوں میں؟ کیونکہ ہم وزٹ پہ جا کے نوکری ڈھونڈتے ہیں، جو کہ غیر قانونی کام ہے، جس کے اندر سب پاکستانی ملوث ہیں، جس کے اندر ایون ماں باپ بھی ملوث ہیں۔ ماں باپ لاکھوں ملینز روپیز لگا کے یورپ میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور انہیں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں
कि आपने वही रह जाना है। खुदारा इस तरह की सोच को बदलिए। अगर आप पाकिस्तान को इज्जत देना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तानियों को इज्जत देना चाहते हैं, तो ये सारी टर्म एजुकेशन वीजा, विजिट वीजा, ट्रांजिट वीजा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वीजा, फैमिली वीजा, इसका कारोबार को कंडेम कीजिए। मैं उनको तो नहीं कहूंगा जो ये बिजनेस कर रहे हैं, जो मिलियंस ऑफ रुपीज कमा रहे हैं, लेकिन वो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि आप उन्हें दे रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं? आप क्यों गलत तरीके से किसी मुल्क में जाते हैं? यही एक वजह है कि हमारी इज्जत नहीं है, क्योंकि हम विजिट पे जाकर नौकरी ढूंढते हैं, अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, अपना जाती नुकसान करते हैं। क्योंकि अगर 100 बंदा दुबई या यूएई या किसी भी मुल्क में जाके नौकरी ढूंढने के लिए विजिट पे जाता है, उसमें से ज्यादा 10 बंदों को नौकरी मिलती है। 90 लोग जो हैं वो वापस आते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट जाया करके आते हैं, जिसका आपके मुल्क को भी नुकसान होता है। अगर हम सारे पाकिस्तानी ये सोचें कि हमने सही वीजे पे जाना है, सही तरीके से जाना है, तो फिर ये हमारी जो इज्जत बहाल इसी सूरत में होगी। हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा फार्मूला नहीं है? बिल्कुल है। क्या एम्बेसीज को ये काम नहीं करना चाहिए? क्या एम्बेसीज को नहीं रिकॉर्ड रखना चाहिए कि ओमान के अंदर कितने बंदों की जरूरत इस वक्त है ओमान को? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अदारे अपना काम नहीं करते। मैं अदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस काम को प्रोटोकॉल लेने के अलावा ये काम भी करें। एम्बेसी में प्रोटोकॉल तो लिया जाता है, एक शहाना जिंदगी उनको मिल जाती है एम्बेसी के लोगों को, लेकिन और वो हमेशा वीजे खोलने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा भी लॉग इस बारे में है, क्या कभी ने इस पर वर्किंग की है किसी ने कि क्या इतने बंदों की ओमान में जरूरत है? हर बंदा ओमान जाने को तैयार है। मैं पिछले 1 साल से ओमान में हूं। अगर आप मेरे पर यकीन करें, वहां पे लोग जो हैं वो बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि सब वीजे खरीद के जाते हैं। किसी को वहां पे आपकी जरूरत नहीं है, वहां पे जॉब्स नहीं है। अरब मुल्क जितने भी हैं उनके स्टैटिक्स बहुत अच्छे हैं, उनके हुक्मरान बहुत अच्छे हैं। उनको पता है कि हमारे मुल्क में कितने पाकिस्तानियों की जरूरत है, कितने इंडियंस की जरूरत है, कितने फिलिपिनोज की जरूरत है। वो इसलिए हमारे वीजे बंद करते हैं और हम समझते हैं कि हमारे वीजे बंद करके हम पे जुल्म कर दिया गया। ऐसा हरगिज नहीं है। उनको हमारी जरूरत नहीं है, वहां पे इतने स्कोप नहीं है काम का। उन्होंने विजिट खोले हुए हैं, विजिट पे जाके वहां पे नौकरियां ढूंढते हैं, भीख मांगते हैं। ये क्या कुछ नहीं होता? ये कौन करता है? ये ट्रैवल एजेंसीज करती हैं, ये माफिया करता है। तो मैं दरखास्त करता हूं पाकिस्तानियों से कि इस माफिया का आलाकार मत बने। कोई भी वीजा खरीद के ना जाए, कोई भी विजिट वीजे पे जाकर नौकरी ना ढूंढे। विजिट वीजे का मतलब है आप उस मुल्क में जाके कुछ खर्च करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर देखते हैं, वहां का सोशल सर्कल देखते हैं। इस वजह से वहां पे विजिट वीजे पे जाया जाता है, ना कि नौकरी ढूंढने के लिए। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं, मैंने जो देखा ओमान में बहुत बुरा देखा, और हर व्लॉग पे बताया जा रहा है वीजे खुल रहे हैं, वीजे खुल रहे हैं। तो क्या वीजे खुलने के बाद वहां पे काम भी होगा? मैंने 95% लोगों को बेरोजगार देखा जो वीजे खरीद के गए, अपने मकान अपनी जायदादें बेच के वहां पे गए, लाखों रुपए का वीजा लेके गए, लेकिन वहां पे जाके वो कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पे उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। जो लोग वीजे बेच देते हैं वो वहीं पे उनको छोड़ देते हैं, वो उनकी कोई मदद नहीं करते, और ये गैर कानूनी काम है। अगर वीजा बेचना गैर कानूनी काम है तो वीजा खरीदना भी गैर कानूनी काम है। अगर विजिट वीजा बेचना गलत बात है और गैर कानूनी है, तो विजिट वीजा लेके नौकरी ढूंढना भी गैर कानूनी काम है। अगर यूरोप के लिए एजुकेशन वीजा बेचना बुरी बात है, उसको अरेंज करके देना और पैसे लेना बुरी बात है, तो एजुकेशन वीजे पे जाके वहां पे नौकरी गैर कानूनी काम करना और वहां पे रुक जाना, यह भी गैर कानूनी काम है। मैं वालिदैन से भी दरख्वास्त करता हूं कि अपने बच्चों को इन जो ये एजेंट हैं इनके हाथों का आलाकार ना बनने दें। माँ बाप भी इन्वॉल्व है इसमें, वो अपनी जायदादें बेच के बच्चों का विजिट वीजा लगाते हैं, एजुकेशन वीजा लगाते हैं। उनको पता होता है कि हमारा बच्चा वहां पे जा रहा है, इसके लिए कोई नौकरी नहीं है, इसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, इसके लिए कोई रहने की जगह नहीं है, लेकिन वो इन्वॉल्व होते हैं साथ, क्योंकि 100 बंदों में से 10 या 15 लोग सेटल भी हो जाते हैं, जो कि गैर कानूनी काम है। इसलिए इस गैर कानूनी काम से पाकिस्तानियों से इल्तमास की जाती है कि इसका हिस्सा मत बने।
हम कब तक इस तरीके के साथ एयरपोर्ट पे एक अलग लाइन में खड़े रहेंगे, जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे। हुकूमत के ऊपर मत छोड़िए, अपने आप से पूछिए, आप जिस वीजे पे जा रहे हैं क्या वो वीजा लीगल है? क्या आपने खरीदा तो नहीं है? जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने आपको बुलाया है, उसका एग्रीमेंट आपने पढ़ा है? अगर हम ये काम शुरू कर दें तो बिलीव कीजिए पाकिस्तानी की इज्जत हो जाएगी। मेरा व्लॉग बनाने का हरगिज मकसद नहीं है कि ये कोई मिलियंस व्यूज में जाए। अगर इसमें चंद लोगों ने भी ये व्लॉग देख लिया और इससे सीख लिया तो मेरा ख्याल है कि मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आखिर पे मैं इदारों से भी दरख्वास्त करूंगा, पाकिस्तानी एम्बेसी से दरख्वास्त करूंगा कि आपके पास इतने क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओमान में 1 साल रहा, मैंने वहां पे देखा कि हमारे सफीर साहब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे वीजे खुल जाएं। वीजे खुल जाएंगे तो लोग वहां जाके क्या करेंगे? क्या आपको वहां के हालात मालूम नहीं है? वहां के कंपनीज में कितनी जगह है, हर मुल्क के पास स्टैट्स मौजूद हैं कि हमें कितने पाकिस्तानियों की जरूरत है। और क्या वो एम्बेसी के साथ शेयर नहीं करते? क्या एम्बेसी को इस पे काम नहीं करना चाहिए? क्या हमारे फॉरेन अफेयर पे इस पे काम नहीं करना चाहिए? तो गवर्नमेंट को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि ओमान में कितने लोगों की जरूरत है। एयरपोर्ट पे हर बंदे को रोकना तो ठीक नहीं है। जिनके वीजे लगे उनको भी रोक लिया जाता है जब होता है और उसका रेट बढ़ जाता है और उसके पैसे देने पड़ते हैं। बहुत मसाइल हैं, लेकिन बेसिक मसाइल पे काम किया जाए कि वीजे को ना खरीदा जाए, ना विजिट वीजे पे नौकरी ढूंढी जाए, ना एजुकेशन वीजे पे जाके वहां पे रुका जाए, बल्कि वापस आया जाए ताकि पाकिस्तान की इज्जत हो, पाकिस्तानियों की इज्जत हो। अगर आप 10 लोग से 100 से 1000 लोग इस बात के ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो देखिए हम एक कौम के तौर पे इसको अडॉप्ट कर लें कि हमने ये गलत काम नहीं करना, तो ये जो ख्वाब बेचने वाले हैं, ये जो झूठे एजेंट हैं, इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।